Hey buddies, where are you going? Subscribe my channel to meet me again. Hello everyone and welcome to our channel Fly School, and today we are going to do the fifth part of our chapter, that is the vision of modernization. French colonialism was resisted at many levels in various forms, but all nationalists had to grapple with one set of questions: what was it to be modern? What was it to be nationalist? In order to be modern, was it necessary to regard tradition as backward and reject all earlier ideas and social practices? Was it necessary to consider the West as the symbol of development and civilization and try and copy the West? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्यों ज़रूरी था मॉडर्न बनना, बेसिकली कि मॉडर्न बनना ज़रूरी क्यों था और जो भी हमारे ट्रेडिशन थे उनको बैकवर्ड क्यों बताया गया. Different viewers were offered to such questions. Some intellectuals felt that Vietnamese traditions had to be strengthened to resist the domination of the West, while others felt that Vietnam had to learn from the West even while opposing foreign domination. These differing visions led to complex debates which could not be easily resolved. तो बहुत से लोगों से क्वेश्चन पूछे गए, कुछ का आंसर जो था ये था कि वियतनाम को जो है अपने आप को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, वेस्ट को देख करके अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. और कुछ लोगों का जो आंसर ये था कि वियतनाम को आगे बढ़ने के लिए वेस्ट को कॉपी करना ही पड़ेगा. विच दिस डिफरिंग, तो सबके अलग अलग डिबेट्स थे, सबके अलग अलग विजन थे और उसी बात पर हमेशा क्या होती थी, डिबेट हुआ करती थी. इन द लेट 19th century, resistance to French domination was very often led by Confucian scholar activists who saw their world crumbling. तो 19th century में क्या हुआ, जो फ्रेंच डोमिनेशन था, जो कि कॉन्फ्यूशियन स्कॉलर ने रखा था, वो क्रम्बलिंग होना शुरू हो गया. एजुकेटेड इन कॉन्फ्यूशियन ट्रेडिशन, फान बोई चाओ वॉज वन सच नेशनलिस्ट. अब एक ऐसे नेशनलिस्ट थे फान बोई चाओ, he became a major figure in the anti-colonial resistance from the time he formed the Revolutionary Society Dui Tan Hoi in 1903 with Prince Quang Di as the head. तो वो एक मेजर फिगर उस टाइम पर बन चुके थे जब एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस चल रहा था, जब वो रिवॉल्यूशन चल रहा था, और उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी बनाई जिसका नाम डोई तान होई था 1903 में, और जिसके हेड कौन थे, प्रिंस क्वांग डी थे. ओके. फान बोई चाओ मेट द चाइनीज रिफॉर्मर लियांग क्विचाओ in Yokohama in 1905. Fan's most influential book, The History of the Loss of Vietnam, was written under the strong influence and advice of Quichao. तो ये क्या हुआ, फान बोई चाओ चाइनीज़ रिफॉर्मर से मिले जिनका नाम था लियांग क्विचाओ, और योकोहामा में 1905 में. और फान की जो है सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक कौन सी थी, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, जो कि उन्होंने क्विचाओ से मिलने के बाद लिखी थी. It became a widely read bestseller in Vietnam and China and was even made into a play. तो वो वहाँ पे उस टाइम पर बेस्ट सेलर बन चुकी थी और उसको प्ले की तरह भी बनाया गया था उसका. The book focuses on two connected themes: the loss of sovereignty and the severing of ties with China, ties that bound the elites of the two countries within a shared culture. It is this double loss that Fan laments, a lament that was typical of reformers from within the traditional elite. तो उसके अंदर दो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया गया था. डैट इज़ एक तो वियतनाम में लॉस ऑफ सॉवरेंटी और दूसरा था सेवरिंग ऑफ टाइज विद चाइना. ठीक है, टाइज दैट जो उनके टाइज जो बने थे चाइना के साथ, उसको दिखाया गया था. अदर नेशनलिस्ट स्ट्रांगली डिफर्ड विद फान बोई चाओ. तो और बाकी जो नेशनलिस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा अलग थे फान बोई चाओ से. वन सच फान चू ट्रिन, तो दूसरे थे फान चू ट्रिन. ही वॉज इंटेंसली हॉस्टाइल टू मोनार्की एंड अपोज टू द आइडिया ऑफ रेजिस्टिंग द फ्रेंच विद द हेल्प ऑफ द
quote, his desire was to establish a democratic republic. तो वो क्या चाहते थे कि एक democratic republic बने. Profoundly influenced by the democratic ideals of the West, he did not want a wholesale rejection of Western civilization. तो वो पूरी तरह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिजेक्ट भी नहीं करना चाहते थे, और लेकिन वो अपनी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी चाहते थे. He accepted the French revolutionary ideal of liberty but charged the French for not abiding by the ideal. तो उन्होंने एक्सेप्ट किया जो फ्रेंच के जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो क्या है, एक लिबर्टी के लिए आइडियल हैं. ठीक है. He demanded that the French set up legal and educational institution and develop agriculture and industries. तो उन्होंने डिमांड किया कि जो फ्रेंच है वो लीगल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करे और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सेटअप करे. अदर वेज फॉर बिकमिंग मॉडर्न, जापान एंड चाइना. अब जापान और चाइना ने क्या किया, मॉडर्न बनने के अलग वेज सुझाव दिए. अर्ली वियतनामीज नेशनलिस्ट हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद जापान एंड चाइना. जो पुराने जो वियतनामीज थे उनका एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था जापान और चाइना के साथ. दे प्रोवाइडेड मॉडल्स फॉर दोज लुकिंग टू चेंज. तो वो मॉडल प्रोवाइड करते रहते थे जो बदलना चाहते थे अपने आप को. A refuge for those who were escaping French police and location where a wider Asian network of revolutionaries could be established. तो वो लोग जो एक तरह से फ्रेंच की पुलिस से छुपना चाहते थे, रिवॉल्यूशनरी थे, फ्रेंच की पुलिस से छुपना चाहते थे और एक जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो अपनी एक नेटवर्क बना सकें. पूरा मतलब जो रिवॉल्यूशनरीज हैं वो अपना नेटवर्क वहाँ पे बना सकें. In the first decade of the 20th century, a Go East movement became popular. तो अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ, एक गो ईस्ट मूवमेंट हुआ जो कि बहुत पॉपुलर हुआ. In 1907 and 1908, some 300 Vietnamese students went to Japan to acquire modern education. तो 1907-08 में क्या हुआ, लगभग 300 बच्चे वियतनाम से जापान गए मॉडर्न एजुकेशन लेने के लिए. फॉर मैनी ऑफ देम द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू ड्राइव आउट ऑफ द फ्रेंच फ्रॉम वियतनाम, overthrow the puppet emperor and re-establish the Nguyen dynasty that had been deposed by the French. These nationalists looked for foreign arms and help. जो बच्चे वहाँ पर गए थे उनका मेन मोटिव क्या था, उनका मेन मोटिव ये था कि किसी तरह से हमें अपनी कंट्री को फ्री फ्रॉम फ्रेंच करना है. ओके. और रीस्टैब्लिश वहाँ पर जो हमारी जो निगुएन डायनेस्टी चल रही थी वो हमें वापस से इस्टेब्लिश करनी है. तो उन लोगों ने क्या किया, एक हेल्प के लिए उन्होंने सोचा कि वो फॉरेन कंट्री से क्या लेंगे, हेल्प लेंगे. दे अपील्ड फॉर टू द जापानीज एज फेलो एशियंस. तो उन्होंने जापानीज से अपील किया. Japan has modernized itself and had resisted colonization by the West. Besides, its victory over Russia in 1907 proved its military capabilities. तो जापान ने क्या किया, जापान तो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रखा था. वो रशिया से जब उसने जब रशिया से मतलब विक्ट्री हासिल की थी 1907 में, तो वो उसकी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ को शो करती थी. इसलिए जो वियतनाम के बच्चे हैं उन्होंने जापान से हेल्प मांगी. Vietnamese students established a branch for the Restoration Society in Tokyo, but after 1908, the Japanese Ministry of Interior clamped down on them. Many, including Phan Boi Chau, were deported and forced to seek exile in China and Thailand. तो वियतनामीज जो स्टूडेंट थे उन्होंने एक ब्रांच जो थी रिस्टोर करी टोक्यो में, लेकिन 1908 के बाद जो जापान की मिनिस्ट्री थी ऑफ इंटीरियर, जापान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्लैम्प्ड डाउन ऑन देम, उनको क्लैम्प डाउन कर दिया. और जैसे कि फान बोई चाओ थे उनको एग्जाइल में भेज दिया, चाइना और थाईलैंड. डेवलपमेंट्स इन चाइना ऑल्सो इंस्पायर्ड वियतनामीज नेशनलिस्ट. जो चाइना के जो डेवलपमेंट्स थे वो फिर जब वो चाइना गए तो वहाँ के जो डेवलपमेंट्स थे वो भी वियतनामीज को इंस्पायर करने लगे थे. In 1911, the long-established monarchy in China
was overthrown by a popular movement under Sun Yat-sen and a republic was set up. तो चाइना का क्या था, 1911 में एक बहुत ही बड़ी मोनार्की वहाँ पर ओवरथ्रो की गई थी. किस मूवमेंट के द्वारा? सुन यात सेन. और एक रिपब्लिक उस टाइम पर वहाँ पर बनाई गई थी. इंस्पायर्ड बाय दीज डेवलपमेंट्स, वियतनामीज स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज द एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम. तो इससे इंस्पायर होकर तब वियतनामीज के जो बच्चे थे उन्होंने एक सोसाइटी वापस से बनाई. वियतनाम के रिस्टोरेशन के लिए एक एसोसिएशन वापस से बनाई जिसका नाम था वियतनाम क्वान फुक होई. Now the nature of the anti-French independence movement changed. The objective was no longer to set up a constitutional monarchy but a democratic republic. लेकिन अब जो था इन लोगों का, वियतनामीज का जो एम था वो थोड़ा चेंज हो चुका था. उनका सिर्फ एम ये नहीं था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएंगे, लेकिन उन्हें एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बनानी थी. Soon, however, the anti-imperialist movement in Vietnam came under a new type of leadership. तो उसके बाद क्या हुआ, जो एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट जो चल रहे थे वियतनाम में वो एक लीडरशिप के अंडर में आ चुके थे. ओके, तो बच्चों ये आपका 5th पार्ट था. आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू. बाय बाय एवरीवन.